Hello children, this is Kalyani. Welcome to my class. Today we are going to discuss chapter 8 of English grammar, that is phrases and clauses. But before we discuss what is phrases and clauses, let me tell you what is sentence. Sentence क्या होता है? A sentence is a group of words that makes a complete sense. Sentence क्या होता है? Group of words होते हैं जो कि एक complete sense देता है. A sentence is a group of words that makes a complete sense, that gives a complete sense. Okay? Now, what is word? Word is the smallest unit of a language. Word क्या होता है? किसी भी language, किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है. Okay? Like school. School is a word. Now, what is phrase? Phrases are small group of words. Phrases क्या होते हैं? Small group of words. Phrases एक sentence के part होते हैं, but phrases अपने आप में एक complete sense नहीं देते हैं. Phrases are small group of words that do not have their own sense. For example, to the school, in the garden, on the sofa, at the market. These all are phrases. These are small group of words जो अपने आप में एक complete sense नहीं दे रहे हैं, लेकिन sentence के part हैं. Sentence को complete करने के लिए इसका होना ज़रूरी है. What is phrase? A phrase is a group of words that does not make a sense on its own. अपने आप में उसकी कोई complete meaning नहीं होती है, but it is important to complete a sentence. For example, in the garden, at the market, to the school. These all are phrases. Now, what is clause? A clause is a group of words that contains a subject and a verb. Clause क्या होता है? Clause group of words होते हैं जिसमें एक होता है subject और एक verb. Okay? What is subject? Subject is a noun. Okay? And what is verb? Verb are the action words. So what is clause? Clause is a group of words that contains a subject and a verb. For example, I am going, I am eating, I am dancing, I am teaching. इसमें क्या है? एक है subject और एक verb. I is a subject and teaching is a verb. So, I am teaching is a clause. अब clause की एक complete meaning हो सकती है, complete sense हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये sentence पे depend करता है. Okay? For example, he went to the market. He went. वो गया. Meaning निकल रही है ना? वो गया. वो गया. He is a subject and went is a verb. So, he went is a clause. To the market. To the market phrase है. Okay? Small group of word है जिसकी अपने में एक complete meaning नहीं है. Okay? To the market. हम अगर सिर्फ to the market बोलते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता. To the market क्या? मार्केट में क्या? इसकी कोई अपनी मीनिंग, कोई अपना सेंस नहीं है. सो क्लॉज एंड फ्रेज बोथ आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस. ठीक? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सी, ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा. ही इज स्लीपिंग. ये क्या है? क्लॉज. वाई? बिकॉज यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ही और एक वर्ब है स्लीपिंग. ही इज स्लीपिंग. वो सो रहा है. इसकी एक मीनिंग निकल रही है ना? वो सो रहा है. सो ही इज स्लीपिंग इज क्लॉज. नाउ ऑन द सोफा. ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा. अब अगर ऑन द सोफा को देखें, सोफा पे, सोफा पे की कोई अपनी मीनिंग है? सोफा पे. अरे सोफा पे क्या? सोफा पे क्या ये तो नहीं पता. सो इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. इट इज अ फ्रेज. He is sleeping on the sofa.
he is sleeping is a clause, and on the phrase is on the sofa is phrase. She is drawing a cartoon on a wall. She is drawing a cartoon on a wall. वो कार्टून बना रही है, ठीक है. शी इज ड्रॉइंग अ कार्टून, ये क्या हो गया, क्लॉज. इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, सो ये क्लॉज है. नाउ ऑन अ वॉल, दीवार पर. दीवार पर अपने में कोई सेंस निकल रहा है? नो. दीवार पर क्या, ये तो हमें नहीं पता. सो ऑन द वॉल इज फ्रेज. इन द सेंटेंस शी इज ड्रॉइंग अ कार्टून ऑन अ वॉल. She is drawing a cartoon is clause, and on a wall is phrase. She is waiting at the door. She is waiting, वो वेट कर रही है. मीनिंग निकल रही है ना, वो वेट कर रही है. वो वेट कर रही है इज अ क्लॉज. यहाँ पे she सब्जेक्ट है और waiting verb है. So she is waiting is clause. At the door, दरवाजे पर. दरवाजे पर अपने में मीनिंग है इसकी? नो. दरवाजे पर ठीक है, पर दरवाजे पर क्या कर रही है ये तो हमें पता ही नहीं है. सो एट द डोर इज फ्रेज. शी इज वेटिंग इज क्लॉज एंड एट द डोर इज फ्रेज. नाउ चिल्ड्रन, यू सी बोथ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस आर अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं ये. ओके. माई डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स. माई डॉग बार्क्स, मेरा कुत्ता भौंकता है. ठीक है, मेरा कुत्ता भौंकता है, इसकी मीनिंग निकल रही है. ओके. माई डॉग बार्क्स. सो माई डॉग बार्क्स इज अ क्लॉज. यहाँ पे माई इज सब्जेक्ट एंड बार्क्स इज वर्ब. सो माई डॉग बार्क्स इज क्लॉज. एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स पे, अनजानों पे. क्या अनजान पे, क्या करता है अनजान पे, ये तो नहीं पता चल रहा है यहाँ पे एट द स्ट्रेंजर्स में. सो एट द स्ट्रेंजर्स इज फ्रेज. माई डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स. यहाँ पे माई डॉग बार्क्स इज क्लॉज एंड एट द स्ट्रेंजर्स इज फ्रेज. ही लाफ्ड एट हिज फ्रेंड. ही लाफ्ड, वो हंसा. ओके. वो हंसा, इसकी मीनिंग है वो हंसा. इट इज अ क्लॉज. एट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड पर. अपने फ्रेंड पर हंसा. अपने फ्रेंड पर एट हिज फ्रेंड इज अ फ्रेज. बिकॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन इसकी अपने में कोई खुद की मीनिंग नहीं निकल रही है. सो एट हिज फ्रेंड इज फ्रेज. ही लाफ्ड इज क्लॉज. ही लाफ्ड एट हिज फ्रेंड. ही लाफ्ड क्लॉज एट हिज फ्रेंड फ्रेज. नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट इज क्लॉज and what is phrase. A phrase is a group of words that does not make a sense on its own. Phrase क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी खुद में अपनी एक मीनिंग नहीं निकलती है. ओके. वो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, बट अगर इन पर्टिकुलर देखा जाए तो फ्रेज की कंप्लीट खुद की मीनिंग नहीं होती, खुद का कोई सेंस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इन द गार्डन, एट द मार्केट, टू द स्कूल, टू द मार्केट, अंडर द टेबल, इन द स्काई. इसकी खुद की मीनिंग नहीं निकल रही है. ओके. सो व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ओके. सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना क्लॉज में ज़रूरी है और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है. सी, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लॉजेस एंड फ्रेजेस दोनों ही सेंटेंस के पार्ट होते हैं. ओके. सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. नाउ अ क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. क्लॉज खुद में एक सेंटेंस हो सकता है बट अ फ्रेज कैन नॉट. लेकिन फ्रेज खुद में एक सेंटेंस नहीं हो सकता. एज आई टोल्ड यू, ही वेंट. ठीक है, ही वेंट, वो गया. ये एक सेंटेंस हो गया ना, वो गया. बट अगर हम बोलें टू द मार्केट, मार्केट गया. अरे क्या मार्केट गया, ये तो हमें नहीं पता चल रहा है, इसकी खुद की मीनिंग नहीं है टू द मार्केट की. ठीक. मार्केट को क्या,
खुद की मीनिंग नहीं निकल रही है ना. सो टू द मार्केट इज फ्रेज. ही वेंट इज क्लॉज एंड टू द मार्केट इज फ्रेज. ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको फ्रेजेस एंड क्लॉज समझ में आ गया है. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक. Okay children, so take out your pencil and open page number 24 of your book. Now we will do exercise from the chapter. Exercise A. Answer the following question with a phrase. यहाँ पे question पूछा गया है and you have to answer the question in a phrase. Question 1. Where do you usually go to play? Where do you usually go to play? अब इसका आंसर एक कंप्लीट सेंटेंस में नहीं देना है, सिर्फ एक फ्रेज में देना है. फ्रेज मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इसका आंसर देना है. ओके, जैसे आपके एग्जाम में आता है वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वैसे ही स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फ्रेज में इसका आंसर देना है. सो वेयर डू यू यूजुअली गो टू प्ले? इन द पार्क, इन द प्ले ग्राउंड, कहीं भी आप लिख सकते हो. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप इन द पार्क लिखो, इन द प्ले ग्राउंड, और जहाँ भी आप जाते हो आप लिख सकते हो. ओके, इन द स्टेडियम, एनीवेयर यू कैन राइट. क्वेश्चन 2. व्हाट डू यू यूजुअली लाइक टू ईट? व्हाट डू यू यूजुअली लाइक टू ईट? होममेड फूड, होममेड फूड, या फिर आप खुद से भी कुछ आंसर लिख सकते हो. ओके. क्वेश्चन 3. हाउ डू यू यूजुअली गो टू स्कूल? बाय बस, बाय रिक्शा, बाय एन ऑटो. ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर. बस ध्यान ये रखना है कि फ्रेज में आंसर देना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट फॉर शॉपिंग? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट फॉर शॉपिंग? लास्ट वीक, लास्ट संडे, yesterday, कुछ भी हो सकता है. ओके. सो क्वेश्चन 5. How do you wash your cycle? How do you wash your cycle? With soap water. Fine. अब 6th to 10th क्वेश्चन आपको खुद से करना है. ओके, जैसे अभी करवाया है इन द सेम वे ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. फ्रेज में आंसर देना है, आपको खुद से करना है. फाइन. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज बी. यहाँ क्या करना है? अंडरलाइन द फ्रेज इन दीज सेंटेंसेस. अब यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से फ्रेज को अंडरलाइन करना है. ओके. सो क्वेश्चन 1 क्या है? आई वॉक्ड टू द स्टोर. आई वॉक्ड, आई वॉक्ड कहाँ? टू द स्टोर. तो यहाँ पे फ्रेज क्या हुआ? आई वॉक्ड? नो, आई वॉक्ड तो क्लॉज हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. सो आई वॉक्ड तो क्लॉज हो गया. सो to the store is phrase here. ठीक, underline to the store. Now second question. With a smile I told the joke. With a smile I told the joke. joke को कैसे बताया? joke को कैसे सुनाया? With a smile. With a smile. With a smile is phrase. Now third question. After sunset is not a good time to go fishing. After sunset is not a good time to go fishing. यहाँ पे फ्रेज क्या है? इसे आप खुद से करेंगे. ओके. ओके. सो क्वेश्चन 4. While flying high in the air, the rocket exploded. While flying high in the air, the rocket exploded. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेज सेंटेंस के बीच में आया है. ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रेज सेंटेंस के बीच में आया है. कहाँ पे? While flying high in the air, the rocket exploded. तो यहाँ पे क्या है फ्रेज? In the air. ओके, in the air इसमें फ्रेज है. ओके, सेंटेंस के बीच में फ्रेज है. Now question 5. Getting the promotion is my only hope. Getting the promotion is my only hope. यहाँ पे फ्रेज क्या है? Getting the promotion. Okay, getting the promotion यहाँ पे फ्रेज है. Now let's come to exercise C. यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे sentences दिए हुए हैं and what you have to do? You have to underline the clauses. Okay,
ध्यान से देखिएगा ये एक्सरसाइज, यहाँ पे क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है और इन सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं, एक क्लॉज नहीं है, मे बी एक भी हो सकता है किसी सेंटेंस में, बट मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में यहाँ पे 2 क्लॉज हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। द ड्रेस दैट शी बॉट ऑन ट्यूजडे वॉज टॉर्न, द ड्रेस दैट शी बॉट ऑन ट्यूजडे वॉज टॉर्न। अब यहाँ पे पहला क्लॉज क्या है, द ड्रेस वॉज टॉर्न, द ड्रेस वॉज टॉर्न, ये पहला क्लॉज है एक, द ड्रेस वॉज टॉर्न, ड्रेस फटी थी, ओके। ये अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है, द ड्रेस वॉज टॉर्न, सो ये फर्स्ट क्लॉज है, ओके। अब दैट शी बॉट ऑन ट्यूजडे, जो उसने ट्यूजडे को खरीदा था, ये सेकेंड क्लॉज है, ओके। फर्स्ट क्लॉज इज द ड्रेस वॉज टॉर्न एंड द सेकेंड क्लॉज इज दैट शी बॉट ऑन ट्यूजडे, that she bought on Tuesday. See, ये क्या है, clause 1 है, clause 1 and that she bought on Tuesday ये है clause 2। कैसे? See, एक होता है dependent clause और एक होता है independent clause। independent clause क्या होता है, जिसकी अपने आप में मीनिंग निकलती है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, जिसकी खुद में एक मीनिंग निकलती है। जैसे द ड्रेस वॉज टॉर्न, अब ये किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है, ड्रेस फटी है, ठीक, इसकी खुद की एक मीनिंग निकल रही है, द ड्रेस वॉज टॉर्न, सो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ दैट शी बॉट ऑन ट्यूजडे, जो उसने ट्यूजडे को खरीदा था। अब ठीक है, जो उसने ट्यूजडे को खरीदा था, लेकिन ये किसी न किसी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये सेंटेंस दैट शी बॉट ऑन ट्यूजडे किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, सो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। द ड्रेस वॉज टॉर्न ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट शी बॉट ऑन ट्यूजडे ये है डिपेंडेंट क्लॉज। फाइन, समझ में आया। नाउ सेकेंड इज whoever stole my pen must give it back, whoever stole my pen must give it back। अब यहाँ पे पहला क्लॉज क्या है, whoever stole my pen, ठीक, जिसने भी मेरा पेन चुराया है, whoever stole my pen, ये है क्लॉज 1, ठीक, और must give it back ये है सेकेंड क्लॉज। whoever stole my pen ये है क्लॉज 1 और must give it back ये है क्लॉज 2। ध्यान से देखिएगा, इन सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हैं, ओके। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज जॉय फेल्ट हैप्पी व्हेन ही फेड हिज पेट। जॉय फेल्ट हैप्पी, जॉय को कैसा लगा, अच्छा लगा, जॉय फेल्ट हैप्पी, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये एक क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी अपने आप में मीनिंग निकल रही है, जॉय फेल्ट हैप्पी, सो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। व्हेन ही फेड हिज पेट, जब उसने अपने पेट को खाना खिलाया, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, सो इट इज डिपेंडेंट क्लॉज। सी, यहाँ पे क्लॉज दोनों ही हैं, लेकिन जॉय फेल्ट हैप्पी ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन ही फेड हिज पेट ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। नाउ फोर्थ वन, आई रिकमेंडेड that you go to the doctor, I recommended ये है फर्स्ट क्लॉज, क्लॉज 1, और यू कैन से क्लॉज 1 और यू कैन से इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ दैट यू गो टू द डॉक्टर, कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, ये है क्लॉज 2, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। So fifth one, I knew he could fix the car better than me, I knew he could fix the car better than me, I knew मुझे पता था, ये क्लॉज है, yes because I knew मुझे पता था। subject and verb, so ये रहा क्लॉज 1 that is
independent clause. Now, he could fix the car better than me. He could fix the car better than me. ये भी clause है. ये है clause 2. ये है clause 1. See, इन सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से ये देखना है और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको खुद से करना है. ओके, इसी तरह से यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्लॉजेस एंड राइट क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज डी. ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है. ओपन पेज नंबर 26. एक्सरसाइज डी. यहाँ पे क्या करना है? रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसे आपको रीड करना है. ओके, फॉर ईच आइटम पुट अ टिक मार्क इन द करेक्ट बॉक्स. अब यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स बने हैं, फ्रेज के और क्लॉज के. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रीड करना है और टिक करना है कि ये फ्रेज है या फिर क्लॉज है. ओके, सो विदाउट गोइंग. अब विदाउट गोइंग क्या है? फ्रेज है कि क्लॉज है? विदाउट गोइंग, बिना गए. कुछ इसका सेंस तो निकल नहीं रहा है. सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं है. सो इट इज़ अ फ्रेज, राइट? विदाउट गोइंग ये फ्रेज है. नाउ सेकेंड, आवर कैट नीड्स फूड. आवर कैट नीड्स फूड, ये क्या है? ये क्लॉज है. यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. आवर कैट नीड्स फूड, ये है क्लॉज. द थर्ड वन, इवन दो आई हरीड. इवन दो आई हरीड क्या है? फ्रेज है या क्लॉज है? ये क्लॉज है. क्या है ये? ये है डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, तो यहाँ पे क्लॉज में टिक होगा. नाउ द फोर्थ वन, इफ आई कुड वॉक फर्दर. इफ आई कुड वॉक फर्दर, ये क्या है? फ्रेज या क्लॉज? ये भी क्लॉज है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट? नाउ फिफ्थ वन, दैट स्मॉल बॉक्स ऑन द चेयर. दैट स्मॉल बॉक्स ऑन द चेयर, ये क्या है? फ्रेज है या क्लॉज? ये फ्रेज है. ओके, सो ये रिमेनिंग एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है इसी तरह से. चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको फ्रेज एंड क्लॉजेस समझ में आ गया होगा. इसी एक्सरसाइज ध्यान से करिएगा. हैव अ गुड टाइम. थैंक यू.